ہم پڑھیں گے مقدس متی رسول کی مارفت لکھی انجیل مقدس ہے، اس کا چوتھا باب، اس کی پہلی 11 آیات کو ہم تلاوت کریں گے۔ میں چاہوں گا بھائی سرفراز آئیں اور اس متن کو تلاوت کرنے میں ہماری رہنمائی کریں گے۔ متی کی انجیل اس کا چوتھا باب، پہلی 11 آیات۔ آئے خدا کے پاک کلام کی تلاوت کو سنیں گے۔ متی کی انجیل اس کا چوتھا باب اور پہلی 11 آیات۔ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنکرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئی نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ بلکہ ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی۔ اس سے کہا، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر، صرف اسی کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا، اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ خداوند کے زندہ معتبر کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر سبوں کو سلامتی ہو۔ آمین۔ شکریہ، تشریف رکھیں۔ تو ایک سیزن روزوں کا اختتام پذیر ہو چکا ہے، دوسرا جاری ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں دوسرے جو ہمارے کزنز ہیں ان کے بھی روزے تھے اور وہ ختم ہو چکے ہیں، اور بھی ہمارے جاری ہیں، اور یہ بڑا خاص ٹائم، بڑا خاص سیزن ہے جس میں ہماری پوری توجہ ایک طرف ہو جاتی ہے۔ ہر روز ویسے بھی ہم عبادت کرتے ہیں، سنڈے کرتے ہیں، لیکن جب یہ سیزن آتا ہے تو یہ قدرتی طور پر ہماری توجہ ایک طرف فوکس کرتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ سیزن ہمیں خدا کی طرف کھینچتا ہے، لے کر جاتا ہے۔ تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ مقدس متی رسول خداوند یسوع مسیح کی ابتدائی زندگی کے بارے میں جو خدمت سے پہلے تھی، لکھا ہے روح یسوع کو کہاں لے گیا؟ جنگل میں لے گیا، تاکہ کس سے آزمایا جائے؟ ابلیس سے آزمایا جائے۔ یعنی ابلیس بھی ایمانداروں کی کیا کرتا ہے؟ آزمائش کرتا ہے، اور اس لڑائی میں لڑنے کے لیے یا جیتنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ کس چیز کی لڑائی میں کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ قوت کی، اختیار کی۔ اگر قوت نہیں تو بندہ لڑ سکتا؟ ماڑا بندہ لڑ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو ابلیس سے لڑنے کے لیے، ابلیس پر غالب آنے کے لیے خداوند یسوع مسیح کو روح جنگل میں لے گا تاکہ وہاں سے قوت حاصل کرے۔ اور کیسے کرے قوت؟ روزہ رکھ کر۔ تو 3 پوائنٹس میں نے نکالے تھے۔ روزہ ہمیں کیا بنا دیتا ہے؟ حلیم بنا دیتا ہے۔ پھر روزہ نمبر 2 ہمیں کیا دیتا ہے؟ قوت فراہم کرتا ہے، اختیار اور قوت فراہم کرتا ہے۔ اور نمبر 3 روزے سے روزہ رکھنے والے کی کیا ہوتی ہے؟ ترقی ہوتی ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، گرو کرتا ہے۔ تو
नंबर 2, रोजा हमें क्या देता है? कुव्वत, या रोजे से हमें कुव्वत मिलती है। ये रूहानी कुव्वत है जिसको पाने के लिए हमें जरूर दुआ और रोजा करने की जरूरत है, ताकि हम अबलीस और मसाइल और उसकी सारी फौजों के साथ मुकाबला कर सके। और जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया में जंग लगी हुई है फिजिकली, तो कौन जीतेगा? जिसके पास कुव्वत ज्यादा होगी वो शख्स गालिब आएगा। और स्पिरिचुअली या रूहानी तौर पर भी कौन शख्स गालिब आता है जंग में? जिसके पास ताकत ज्यादा होगी। और ताकत हमें कहां से मिलेगी? रोजे के वसीला से। वैसे भी हम जिंदगी गुजार सकते हैं, रूहानी लोग हैं, बड़े हैं, लेकिन जो शख्स दुआ और रोजा नहीं करता वो स्पिरिचुअली कभी भी ताकतवर शख्स नहीं बन सकता। रूहानी तौर पर कुव्वत पाने के लिए हमें किसकी जरूरत है? जोर की जरूरत है, ताकत की जरूरत है। और गलबा पाने के लिए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और आगे बढ़ने के लिए, गलबा पाने के लिए हमें ताकत और इख्तियार की जरूरत है। और एक एलिमेंट है जो हमें यानी ईमानदारों को कुव्वत और ताकत देता है, वो क्या है? रोजा। तो रोजा रखने से हम जिस्मानी तौर पर हो सकता है कमजोर हो जाएं, लेकिन रूहानी तौर पर क्या होते चले जाएंगे? जोरावर होते चले जाएंगे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जब जंगल में थे और उन्होंने कुछ ना खाया, कुछ ना पिया, और कमजोरी के बायस अबलीस उनके पास आता है और कहता है, अगर तू खुदा का बेटा है, इन पत्थरों से क्या बन जाए? क्योंकि तुझे भूख लगी है, तू वीक हो गया है, इसलिए तुझे खाने की जरूरत है, ताकत की जरूरत है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा हमें जिस्मानी ताकत की बेशक जरूरत है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत की जरूरत क्या है? या सबसे बड़ी ताकत की कैसे जरूरत हो सकती है? वो ताकत कौन सी है? वो रूहानी ताकत है। और रूहानी फौजों से कैसे लड़ा जाता है? कैसे लड़ा जाता है? जिस्मानी फौजों से कैसे लड़ा जाता है? हथियारों से, फिजिकल हथियारों से, जिस्मानी नजर आने वाले। और रूहानी फौजों से कैसे लड़ा जाता है? कलाम के हथियार से। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि किससे? और वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है जीता रहेगा। हमें रूहानी ताकत कहां से मिलेगी? खुदा के कलाम से मिलेगी, ताकि हम अबलीस पर गालिब आ सकें। तो अगर रूहानी ताकत नहीं होगी तो हम कभी भी गालिब नहीं आ सकेंगे। बहुत सारे मसाइल और बहुत सारी आजमाइशें अबलीस हमारे सामने रख देगा। जैसे यीशु मसीह के सामने उसने एक बड़ी आजमाइश रखी कि तू भूखा है और तू कमजोर होता जा रहा है, क्या रखना शुरू कर, क्या कहना, अपने इख्तियार को इस्तेमाल कर। यीशु मसीह ने कहा इंसान सिर्फ जिस्मानी रोटी से जीता न रहेगा, बल्कि एक और रोटी है जिससे उसको रूहानी कुव्वत मिलेगी, वो है खुदा का कलाम। तो कितने लोगों ने आज सुबह सुबह खाया पर्सनली? सारे रोजा रखे। तो ये क्या? रूहानी खुराक, रूहानी कुव्वत मिलती है और रूहानी ताकत मिलती है। इससे ईमानदार शख्स जोरावर होता जाता है। इसलिए यीशु मसीह ने अबलीस पर गलबा पाने का कहा उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती। तो रूहानी तौर पर क्यों हम कमजोर होते चले जाते हैं? क्योंकि हम रोजा और दुआ कम करते हैं, या ये खुराक क्या करते हैं? कम खाते हैं। जब इसको खाएंगे आप रूहानी तौर पर जोरावर होते चले जाएंगे। जो शख्स रूहानी तौर पर जोरावर होगा वो शख्स जिस्मानी तौर पर भी मजबूत होता चला जाएगा। इसे खातमे मुकद्दस पौलुस कहता है, मैं दुआ करता हूं तुम में से हर एक खुदा के पाक रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही ज्यादा जोरावर होते चले जाओ। किसमें जोरावर होना है? बातनी इंसानियत में,
ताकि हम इब्लीस का मुकाबला कर सके, उसके मंसूबों पर गालिब आ सके, अपनी ख्वाहिशों पर गालिब आ सके, अपनी फिक्रों पर गालिब आ सके, अपने मसाइल पर गालिब आ सके और उन सारी सूरत हाल पर गलबा पा सके जो हमें उलझाए रहती, हमें रूहानी तौर पर आगे नहीं बढ़ने देती। चर्च आने लगे कि यार का उठान दिया तो नजर आती है रुकावट पैदा कर रहा है, नजर नहीं आती लेकिन रुकावट आ रही होती है। और इस रुकावट को या इस पर कैसे गालिब आएंगे हम? रूहानी कुव्वत से। और जब तक कोई शख्स रूहानी तौर पर दुआ और रोजा नहीं करेगा, रूहानी कुव्वत बहुत कम है, उसकी जिंदगी में असर। बहुत से लोग बड़ी बड़ी खिदमत करते हैं लेकिन रूहानी तौर पर जोरावर कौन शख्स होगा? जो शख्स दुआ और रोजा करेगा। आप तजर्बा कर ले, बहुत बड़ी बड़ी खिदमत है, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, लेकिन स्पिरिचुअली वही शख्स मजबूत होगा जो दुआ और रोजे की जिंदगी गुजारेगा, वही शख्स बातनी तौर पर मजबूत होगा। जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाने वाले थे तो यीशु मसीह ने शिष्यों का जब तक तुमको आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले तुम कहां ठहरे रहना? बाला खाना में ठहरे रहना या शहर में ठहरे रहना, ताकि जो ही लिखा दूसरे बाब में मकतम उसका नसूल होता है तो लिखे हर एक पर रुलकुस की कुदरत आकर ठहर गई और वो कुव्वत से कैसे भर गए? कुव्वत से भर गए। पढ़ेंगे इस हवाले को, ईमान की किताब उसका दूसरा बाब है। और हर एक रुलकुस से भर जाता है और कुव्वत पाता है। इसलिए जो रोजा है बेशक हम नहीं रख सकते, इससे हम रूहानी तौर पर कमजोर होते चले जाते हैं। लिखा जब ईद पेंटिकोस का दिन है तो सब एक जगह पे जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है, उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज उठा और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वो सब रोल से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने बोलने की क्या बख्शी? ताकत बख्शी, कुव्वत बख्शी। ये स्पिरिचुअल ताकत है, रूहानी कुव्वत है। कई दफा हम कितने कितने साल इस वेद में रहते हैं, रूह उसका बैप्तिस्मा हो, हम कुव्वत पाए, लेकिन नहीं होता क्योंकि रूहानी तौर पर हम वीक होते, ठहरते नहीं हैं और खुदा के कलाम के मुताबिक अपने आप को पेश नहीं करते। इस कुव्वत से भरने के लिए, इस कुव्वत से लेस होने के लिए हमें खुदा की हजूरी में बैठने की जरूरत है। यहाँ रोजा नहीं लिखा, हो सकता है मेरे ख्याल में वो रोजा और दुआ में ठहरे हुए थे, फिर उनको कुव्वत मिली। ये है रूहानी तौर पर मजबूत होने के लिए। किसी भी ईमानदार शख्स, हर एक ईमानदार शख्स के लिए जरूरी है रूहानी तौर पर मजबूत हो, ताकि वो इनका मुकाबला कर सके, इब्लीस के मंसूबों का। और बहुत सारे मसाइल हैं जो दुनिया में दरपेश हैं और उसको पीछे करते हैं, उनका मुकाबला करने की जरूरत है। सैमसन या शमसून के बारे में हम देखते हैं, कौन सी कुव्वत की उसके अंदर है? एक ही हड्डी से, गधे के एक जबड़े से कितने लोगों को उसने मार दिया? 1000 फलस्तीनियों को उसने मार दिया एक जबड़े की हड्डी से। कौन सी कुव्वत थी उसके अंदर? रूहानी कुव्वत से भरा हुआ था। रोजा रखा था उसने? रखा था कि नहीं? आगा से रोजा नहीं रखा, लेकिन वो रोजा उसने कौन सा रखा था भला? लिखा है इसके सर के बाल को उस सर पर उसरा ना लगे। कौन सी कमिटमेंट की? तो रोजा क्या था? नियत का नाम रोजा। कमिटमेंट का मतलब है रोजा। मैं सुबह से शाम तक, मैं या शाम से शाम तक
खुदा के लिए, खुदा की हुजूरी में बैठने के लिए खाना नहीं खाऊंगा, ये काम नहीं करूंगा। रोजा हमें कुछ चीजों को स्टॉप करने के लिए या कुछ चीजों से स्टॉप के लिए हमारी नीयत पर डिपेंड करता है। संसद के बारे में क्या लिखा गया है? उसके सर के बालों पर उस्तरा, मैं समझता हूं ये उसका रोजा ही है। कमिटमेंट उसके, इस कमिटमेंट ने उसकी जिंदगी में इस कदर कुव्वत भर दी, इस कदर जोरावर बना दिया, कोई शख्स उसके सामने ठहर नहीं सकता। उसको ताजा रस्सियों से बांधा गया और वो बड़ी मजबूत रस्सियां थी। जब उसकी बीवी ने, दलाला ने उसको बांधा कि मुझे राज बता, उसने कहा मुझे बांध दो तो मुझे कोई भी शख्स, मैं किसी को नहीं मार सकता, मेरा जोर कम हो जाएगा। दलाला ने बांध कर उसको फिलिस्तीनियों को बुलाया कि मैंने उसको बांध दिया। कैसे उसने रस्सियों को तोड़ा था? एक ही झटका दिया, रस्सियां टूट गई। कौन सा जोर था ये स्पिरिचुअल या रूहानी ताकत। कोई वो अलग शख्स नहीं था, हमारी तरह क्या था, हमारा हम तबीयत इंसान था, लेकिन उसकी कमिटमेंट थी रूहानी तौर पर जोर हासिल करने के लिए। उसके अंदर क्या थी? कुव्वत थी। कौन कौन कुव्वत पाना चाहता? रूहानी कुव्वत पाना सारे चाहते हैं। हर कोई खिदमत करने वाला शख्स चाहता है नया कलाम सुनावा तो लोग की करना, लोग की करना की करने वाला मेरा नाम लाए। ये शख्स ने आज कमाल कर दिया है, ये नहीं समझने के बरकत पाएंगे। मैं नेचर की बात कर इंसान, हर कोई शख्स कहता है मेरी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री हो। इसका मतलब क्या है? मेरा नाम मैं जाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं। लेकिन जब रूहानी कुव्वत हमारे अंदर होगी तो हम अपने आप को पीछे करेंगे, खुदावंद यीशु मसीह को आगे करेंगे। यीशु मसीह ने कहा इंसान सिर्फ रोटी से जीता न रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। यीशु मसीह ये भी कह सकते मेरे पास इख्तियार है, मैं ऐसा कर सकता हूं, लेकिन उसने अपने आप को पीछे किया और खुदावंद को आगे किया है। ये है रूहानी कुव्वत जो रोजे के वसीले से हमें मिलती है। तो जब ये कुव्वत हमारे अंदर होगी तो हम क्या करेंगे? गालिब आएंगे इब्लीस के मंसूबों पर। एवरी पर्सन गालिब आना चाहता है, हर बंदा चाहता है मैं गालिब आऊं, लेकिन कैसे आना है? कुव्वत से। और उस कुव्वत को कैसे हासिल करेंगे? खुदा के कलाम के मुताबिक दुआ और रोजा रखने से। तो जब कलाम हमारे अंदर नहीं होगा कि खुदा का कलाम क्या कहता है, फिर हम कभी भी कुव्वत हासिल, लड़ते रवांगे सी लेकिन शिकस्त खाते रवांगे, लड़ते रवांगे लेकिन हो सके ना शिकस्त हो ना जीत हो। कभी कभी मैच लगता, बारिश हो जाती, क्या होता है भला? क्या होता है? ड्रा हो जाता, दोनों को नंबर मिलते, ना जीतते हैं ना। ईमानदार भी लड़ता रहता है, ना जीतता है तो ना अगे ग्रो ही नहीं कर रहा, क्योंकि कुव्वत नहीं उसके पास होता। ईमानदार है, लड़ता भी है, लेकिन कुव्वत नहीं उसके पास होती। या वो बराबर चला जाता है या फिर ड्रा हो जाता है मैच। और ये एक बहुत बड़ी जंग है और ये रहेगी और रहनी है, क्योंकि यीशु मसीह की दाई जिंदगी में या दाई खिदमत में ये जंग शुरू हो गई और यीशु मसीह पर गालिब आए और हम एक रोल मॉडल देंगे कैसे हम गालिब आ सकते हैं। यीशु मसीह ने अपने आप को पीछे किया और खुदावन को आगे किया और यीशु मसीह ने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा, जो कुछ खुदा के कलाम लिखा है मैं उसके मुताबिक करूंगा। फिर यीशु मसीह के सामने एक और आजमाइश लेके आता कि तुम अपने आप को कुंगरे से गिरा दे, क्योंकि तेरी बाबत लिखा हुआ है कि तुझे अपने हाथों पर क्या कर लेंगे, फरिश्तों को भेजेगा, तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे और तुझे तेरे पत्थर से तेरे पांव पर ठेस नहीं लगेगी। फिर भी खुदावंद यीशु मसीह ने कहा नहीं, मैं अपने आप को जलाल नहीं दूंगा,
मेरा खुदा मौजूद है, वो उससे मुझे कुव्वत से भर सकता है, भरा हुआ है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसलिए रोजा जो होता है वो हमें क्या देता है? कुव्वत से भर देता है, नया बना देता है। दुआ रोजा जो कलाम के मुताबिक करते हैं हमें खुदा की तरफ खींचना शुरू कर देता है और इब्लीस कमजोर होता चला जाता है। कैसे भला? इसके किताब में लिखा, खुदा ने कहा मैं तुम पर साफ पानी क्या करूंगा? छिड़कूंगा, अपने रूह में से तुम पर क्या करूंगा? अंधेलूंगा और तुम्हें तुम्हारे तमाम गुनाहों से और गंदगी से क्या कर दूंगा? साफ कर दूंगा, धो डालूंगा और तुझे तुम्हारे अंदर से संगीन दिल क्या कर दूंगा? और कौन सा दिल दे दूंगा? और तुझसे अपने अहकाम की पैरवी कौन करवाएगा? चर्च आने के लिए कौन जोर देगा? खुदा। हमारा दिल तब्दील कर दे, फिर हम बोलेंगे खुदा के बगैर ऐसी नहीं रह सकते। तो जो हमारा दिल सख्त होगा तो फिर खुदा के बगैर भी हम रह सकते हैं। दिल सख्त है, खुदा के बगैर रह सकते हैं। दिल सख्त है, कलाम हमारी जिंदगी में असर नहीं करेगा। दिल सख्त है, झूठ बोलना हमारे लिए इतना बड़ा मैटर नहीं करेगा। दिल सख्त है, गुनाह के पास जाने के लिए हमें कोई हमारा ज़मीर मलामत नहीं करेगा। लेकिन जब दिल नरम होगा, ऑटोमेटिकली खुदा का रूह हमें झंझोड़ेगा। कोई शख्स ईमानदार है, कोई खिदमत में है, जब तक उसका दिल सख्त है वो शख्स कभी भी खुदा के ताबे नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर कुव्वत नहीं है इब्लीस के खिलाफ जंग कर सके, लड़ सके, नो कह सके। तो जब कुव्वत नहीं है तो फिर हम नो नहीं कह सकते। इमरान खान ने क्या कहा था जब अमेरिकन को कोई सवाल किया तो उसने कहा एब्सोल्युटली हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन जोरावर शख्स ने उस पर गालिब आकर उससे हाँ कर। इब्लीस को कब कहेंगे एब्सोल्युटली नॉट? जब हमारे अंदर रूहानी कुव्वत होगी, उसको कहेंगे पीछे हट जा, मैंने यीशु के पास जाना है। हमारा ज़मीर कहेगा, हमारा दिल कहेगा, हमारे पांव कहेंगे, हमारे हाथ कहेंगे हमें अपने खुदा के पास जाना है। इसलिए जो रोजा है हमें क्या देता है? कुव्वत देता है। 40 रोजे रखने के बाद भी कोई चेंज हमारी जिंदगी में नहीं आया, इसका मतलब ऐसा रोजा हमने नहीं रखा जो खुदा को पसंदीदा रखा है। लेकिन ऐसा रोजा नहीं रखा जो खुदा को पसंदीदा। बनी इस्राएल ने शिकवा किया, अपने रोजे के कोई जवाब नहीं आया, कोई तब्दीली है, जो कुछ हम चाहते हैं वो ऐसा नहीं हुआ। खुदा ने कहा तुमने मेरी मर्जी के मुताबिक रोजा नहीं रखा, इसलिए तुम्हें कुव्वत नहीं मिली। तो रोजा हमें क्या किससे भर देता है? कुव्वत से। जब खिदमत के लिए निकलना होता है, खिदमत करनी होती है, उससे पहले हमें खुदा की हजूरी में कुव्वत हासिल करने की जरूरत है। यीशु मसीह खिदमत से पहले आजमाए, ਅਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਅਜ਼ਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਖਿਦਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। लेकिन यीशु मसीह खिदमत करने से पहले दुआ और रोजे में ठहरे। जैसा मैंने बताया था, जो शख्स तौबा करता था दाई कलीसिया में या शुरू में, तो रोजे तौबा बपतिस्मा लेने से पहले कितने रोजे रखता? 40 रोजे वो रखता है। इसलिए 40 रोजे जो है ये हमारे आलम दीन ने, खुदाम ने तरतीब दिए हैं, क्योंकि खुदा में पहले दौर में, पहली कलीसिया में जो शख्स तौबा करने वाला शख्स बपतिस्मा लेने से पहले कितने दिन रोजा रखता? 40 दिन रोजा रखता। 40 दिन रोजा रखने के बाद जब ईस्टर आता तो ईस्टर के दिन वो बपतिस्मा लेता, उसकी जिंदगी टोटली तब्दील हो जाती।
हम जब बपतिस्मा लेने के बाद कितने रोजे रखते हैं लेने से पहले? मैंने बताया मैं जी फोन करके नहीं चल हम बपतिस्मा ले लिया कोई गल नहीं, क्योंकि हमें तब्दीली की जरूरत नहीं है, हमें किसी और चीज की जरूरत है, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह खिदमत से पहले 40 दिन आजमाए गए और जब आजमाइश के बाद निकले और हर चीज उनके ताबे थी, अबलीस उनके ताबे था, लोग उनके ताबे थे, शागिर्द उनके ताबे थे, एवरीथिंग हर तरह से वो गालिब थे। इसलिए उन्होंने आते ही मुनादी करना शुरू की, बस तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। और आते ही एक बड़े बदरूगिफ्ता शख्स के सामने उसका मुकाबला। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? इसमें से निकल जा। हम कैसे निकालते हैं? खिदमत करने वाले कैसे निकालते हैं? जुत्ती तार ले। एक मूवी बड़ी वायरल हुई है, खादम है, पता नहीं कहाँ गया, एक बुजुर्ग गिरफ्तार शख्स को लेकर आते, वो निकलती नहीं बुजुर्ग, तो वो अपनी जूती उतार उसको मारना शुरू कर। कैसी कुव्वत है! इसकी कुव्वत के साथ साथ हमें अंडरस्टैंडिंग का होना भी जरूरी है। इसलिए रोजा और दुआ हमारे अंदर रूहानी कुव्वत पैदा कर देता है, मुकद्दस स्टिफनेस। और बाकी जो शागिर्द उनके बारे में देखिए लिखा है कि उन्होंने क्या किया? दुआ और रोजा रखा और पाक ने उनकी रहनुमाई की, इन लोगों को खिदमत के लिए मुकर्रर कर दो। हम कैसे खिदमत के लिए मुकर्रर होते हैं देखेंगे। ईमाल की किताब उसका 6वां बाब, खिदमत के लिए कैसे महसूस होते हैं, कुव्वत कैसे हासिल करेंगे, इन सारी चीजों का ऑब्जर्व करें। तीसरी आदमी के पास भाइयों अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह कुस और दनाई से क्या हो, भरे हुए हों कि हम उनको उस काम के लिए मुकर्रर कर। लेकिन हम तो दुआ और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। और आगे लिखा है उन्होंने रसूलों के आगे खड़ा किया उनको, और उन्होंने दुआ करके उन पर क्या रखे? हाथ रखे। और खुदा का कलाम फैलता रहा और यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बहुत बढ़ता रहा। जब हम देखते हैं 13वां बाब, वहां क्या किया जाता है? खिदमत के लिए चुना जाता है। और 13वें बाब में लिखा हुआ है मुकद्दस पौलुस को और बाकी लोगों को चुनते हैं। तीसरी आयत में लिखा है दूसरी में, जब वो खुदावन की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रूह कुस ने कहा मेरे लिए बरनबास और सौल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। ये है दुआ रोजे की कुव्वत। पाक रूह बोलना शुरू कर देता है, अपनी मर्जी बंदे की नहीं होती। कुछ खादमों को किसने बुलाया होता है? एक खादम, एक बाइबल टीचर बताता है कि कुछ लोगों को खुदा बुलाता है, बनाता है, और कुछ लोगों को आदमी बनाते हैं, लोग बनाते हैं, कुछ लोग खुद ही बन जाते हैं। कितने किस्म के खादिम हैं? 3 किस्म के। कुछ लोगों को कौन बनाता है? खुदा। और कुछ लोगों को लोग बना देते हैं, कुछ लोग खुद ही बन जाते हैं। तो जिसको खुदा बनाएगा उसके अंदर कुव्वत होगी, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी, उसके अंदर बोझ होगी। कुछ लोग खुद ही बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? हम सारे वाकिफ इन बातों से। और कुछ लोगों को लोग बना देते हैं। ए बंदा बड़ा अच्छा बोलता है, ये इस काबिल है। ए बंदे च बड़ी खूबी है, यहाँ पढ़े लिखे बड़ा है, ये खूबी है। तो उनको इंसान बनाते हैं। इसलिए कई लोग खोजों के बारे बड़ी मनफी सोच रखते हैं। और एक शख्स मुझे कहते पाल साहब शादी करनी चाहिए इंसान, बाइबल च लिखा है
खुदा ने कहा आदम अकेला है, इसका अकेला रहना अच्छा नहीं, तो फिर होना चाहिए शादी। मैंने कहा कलाम में लिखा है खोजे भी हैं, और खोजे भी 3 किस्म के हैं। पहले खोजे किस किस कौन बनाता है? पहले खोजे कुछ खुदा की तरफ से हैं, और कुछ खोजे आदमियों की तरफ से हैं, और कुछ खोजे खुद बन जाते हैं। जो खुदा की तरफ से हैं वो बाबरकत शख्स है, जो खुदा की तरफ से उनके अंदर रूहानी कुव्वत मौजूद है, और जिनको इंसान बना देते हैं, उनसे काम लेते हैं। जो खुद बन जाते हैं, इसलिए रूहानी कुव्वत हम कैसे हासिल कर सकते हैं? अपनी रूहानी तौर पर खुदा की हुजूरी में टाइम स्पेंड करने से। और ये कैसे कुव्वत मिलेगी? दुआ और रोजे से। जब स्टीफनस को महसूस किया गया दुआ रोजे के बाद, तो मुकद्दस स्टीफनस के बारे में लिखा है वो रूह और कुव्वत से भरा हुआ था, और किनका मुकाबला करता? किनका मुकाबला करता? 7वें बाब की 54वीं आयत में, जब उन्होंने ये बातें सुनी तो जी में जल के इस पर दांत पीसने लगे, मगर उसने रूह कुद्स से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की, और खुदा का जलाल और खुदा यीशु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देख कर कहा, देखो मैंने आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूं। लिखा है जब उन्होंने मगर उन्होंने बड़े जोर से चलाकर अपने कान बंद कर लिए। जब इससे पीछे पढ़ते हैं, लिखा है जो स्टीफनस था रूह उसके जोर से कुव्वत से भरा हुआ लिबर्टीनियों का और सिकंदरियों का मुकाबला करता, कोई इसको फेस नहीं कर सकता, क्योंकि रूह उसकी कुव्वत से भरा हुआ है। इसका मतलब इंसान या खादम या ईमानदार शख्स की अपनी कोई हैसियत नहीं है। जब उसके अंदर रूहानी कुव्वत होगी, हर शख्स को फेस कर सकेगा, इब्लीस को फेस कर सकेगा। मुकद्दस पौलुस कहता है वो फतह से बढ़कर हमें क्या देता है? गलबा देता है। फतह क्या होती है? गलबा क्या होता है? फतह होती है हमने या किसी एक फौज ने दूसरी फौज को पीछे भगा दिया, फतह पा ली, और वो अपने मुल्क में चले गए, वो अपने मुल्क में। ये क्या है? फतह। फतह से बढ़कर गलबा क्या है? उसके मुल्क पर काबज होना। ये है फतह से बढ़कर गलबा है। ईमानदार शख्स को खुदा ने फतह से बढ़कर गलबा दिया कि वो उन सारी वीकनेसेस पर, इब्लीस के मंसूबों पर और उन ख़ाहिशात पर गालिब नहीं आता, बल्कि फतह से फतह नहीं पाता, बल्कि फतह से बढ़कर गलबा पाता। तो फिर खुदा के साथ चलना हमारा मुश्किल नहीं है। जब रूहानी कुव्वत हमारे अंदर होगी, खुदा के साथ चलना मुश्किल नहीं। नंबर 3, रूहानी कुव्वत कैसे मिलेगी? दुआ रोजे से। और एक और रूहानी कुव्वत है जो पाक रूह की नेमतें हमें मिलती हैं, और ये क्या रूहानी कुव्वत है? रूहानी आलम में हम लड़ सकते हैं। मुअज्जिज़ात कैसे होते हैं? जिस्मानी तौर पर लड़ने से नहीं। पौलुस रसूल कहता है कुरिन्थियों खत में, रूहानी नेमतों की क्या रखो? आरज़ू। आरज़ू कैसे रखें? क्यों रखते हैं आरज़ू? जो अक्सर जादूगर होते हैं वो बड़ी बदुएं निकालते हैं और वो कुव्वत हासिल करते हैं। कहां से करते हैं भला कुव्वत हासिल? इब्लीस से करते हैं कुव्वत हासिल। इब्लीस को वो अपनी मर्जी दे देते हैं और उससे कुव्वत। क्यों कुव्वत हासिल? ताकि उनका नाम हो सामने। लेकिन एक रूहानी शख्स जो होता है, ये रूहानी कुव्वत पाकर नेमतों के सिला से मामूर होकर जोरावर शख्स बन जाता है। तो रूहानी कुव्वत कैसे पाएंगे? दुआ और रोजा से। मुकद्दस पौलुस तीमुथियुस को कहता है, जो नेमत तुझे
बुजुर्गों के हाथ रखने से मिली है उसको क्या कर दे, चमका दे। जब कुव्वत तुझे मिली है और ईमान की किताब में लिखा जब रूह कुछ तुम पर नाज़िल होगा तुम क्या पाओगे, कुव्वत पाओगे। पाक रूह की नेमतें हमारी जिंदगी में रूहानी कुव्वत पैदा कर देती है। लिखा है किसी को मुअज्जिज़ात की कुदरत, वो शख्स इस कदर रूहानी कुदरत से और कुव्वत से भर जाता है, उसके वसीले खुदा मुअज्जिज़ात करना शुरू कर देता है। जस्ट वो कैदे इब्लीस को और मुअज्जिज़ा हो जाता है। एक शख्स के बारे में लिखा है, हमारे बाइबल टीचर थे, वो बताते शुरू क्या था, मैं बड़ा दुआ रोजा करता। इस कदर उसकी जिंदगी पर मस्सा था। कहते एक दफा हम एक वैन गाड़ी में जा रहे, मेरे सामने दो खवातीन बैठी, तो एक खवातीन ने अपना दुपट्टा सीधा किया तो कहता मुझे टच हुआ और उसमें बदरू आ गया। ये कौन सी कुव्वत है, रूहानी कुव्वत। कैसे मिली, दुआ। इसलिए यीशु मसीह ने कहा ये किस्म दुआ रोजे के बगैर नहीं निकल सकती। कुव्वत नहीं आपके अंदर स्पिरिचुअली या रूहानी जंग करने की, उसको हासिल करने के लिए रोजे की जरूरत। अगर नहीं जरूरत तो फिर नहीं रखेंगे। ये हमारी मर्जी, हर पे डिपेंड करता है हम कुव्वत हासिल करना चाहते हैं कि नहीं। एक और शख्स के बारे में किताब में पढ़ा था मैंने, वो स्पिरिचुअली रूहानी सोरावर शख्स था और उसके बारे में लिखा है जब वो ट्रेन में कदम रखता तो ट्रेन की एक बोगी में जितने भी बुजुर्ग गिरफ्तार होते वो उसके पास चले आते, चलाना शुरू कर देते। ये कौन सी कुव्वत है, रूहानी कुव्वत। मेरे ख्याल में हम में से हर कोई ऐसी कुव्वत हासिल करना चाहता है, खास होती है हमारे इंसान की। लेकिन ये कैसे मिलेगी, दुआ और ये सच्ची बातें हैं जैसा खुदा मुअज्जिज़ात करता है। हमारे कराची के जी के एक खादिम हैं और अभी तो उनके बारे में इतना सुना, लेकिन उनके बारे में था कि जब वो जिस गली में जाते, जिस गली में से गुजरते, साइडों पे घरों में जहां जहां बुजुर्ग होते वो चलाना शुरू कर। कौन सी कुव्वत है भला, जुत्ती लाने की जरूरत है, नो, मारने की जरूरत है नहीं। रूहानी कुव्वत जो होती है ये मफूकुल फितरत कुव्वत है। ये पाक रूह की नेमतों से मिलती है, ये रूह उसकी कुदरत से, उसकी ममूरी से। जब कोई शख्स ईमानदार ममूर होता चला जाता है, ये पाक रूह का मसा उसके वसीले अजीब काम करता है। तो साइडों पे उस गली के घरों में जहां जहां बुजुर्ग होती वो चलाना शुरू कर देते। ये है रूहानी कुव्वत। तो जिस कदर हम इसके भूखे और प्यासे होंगे या आरज़ू रखेंगे, इसलिए मुकद्दस पौलुस ने कहा रूहानी नेमतों की क्या रखो, आरज़ू रखो। और हर एक ईमानदार शख्स को इसकी आरज़ू होनी चाहिए। खुदा एक तरह से इस्तेमाल नहीं करे, खुदा के बड़े तरीके हैं, लेकिन हमारे अंदर आरज़ू होनी चाहिए। मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है करंथियों खत में, दूसरे करंथियों में 10वें बाब की 4थी आयत में लिखा है मैं उन सारे तसव्वुरात को और ख्यालात को जो खुदा के बेटे की शान के खिलाफ सर उठाए हुए हैं, कैद करके मसीह के ताबे कर देता। कौन सी जंग है, रूहानी जंग। नजर नहीं आती लेकिन उसके दिमाग में है। मनफी ख्यालात हो सकते हैं और ख्वाहिशात हो सकती हैं जो हमें यीशु के पास नहीं आने देती, और फिक्रें उसके ज़हन में हो सकती हैं, और बड़े तसव्वुरात हैं, मसाइल हैं जो हमें उलझाए होते हैं। कहते हैं हर एक तसव्वुरात को, ख्यालात को मैं ताबे कर, कैद करके मसीह के ताबे कर देता हूं। ये कैसे होगा, ये जब रूहानी कुव्वत हमारे अंदर होगी। इससे हम अंडरस्टैंड करके उन सारे ख्यालात को ताबे करके कैद कर सकते अपने ख्यालात को जो यीशु मसीह की शान के खिलाफ खड़े होते हैं। कौन कौन से ख्यालात यीशु मसीह की शान के खिलाफ खड़े हो सकते हैं?
ਪਰੌਣੇ ਆ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ आए हुए। कभी रहना पड़ता, मैं नहीं कहता कोई जरूरी है, लेकिन कैसे हम अपना टाइम जो खुदा का टाइम है दूसरों को देते। फिक्रों की कसरत हमें यीशु मसीह से दूर लेके जा सकती है। हमारे अंदर की ख्वाहिशात हमें यीशु मसीह से दूर लेके जा सकती है। हो सकता है चर्च में हम कहें हाँ मैं इन सारी चीजों को मैं छोड़ना है, बाहर जाएं तो फिर वही ख्यालात हो जाएं। इन पर कैसे गालिब आना है? जैसे मैंने बताया कि नौजवान मुझे कहता जब तू इस कलाम सुनाने दे कहता मैं सारा कुछ की कर दूंगा छड़ दमा, लेकिन जब बाहर जाएगा फिर वही ख्यालात, उन ख्यालात पर कैसे गालिब आना है, उन ख्वाहिशात पर कैसे गालिब आना है? रूहानी कुव्वत के साथ, माफौकल फितरत के साथ उन पर गालिब आएंगे। ऑटोमेटिकली वो हमारे सामने मगलूब हो सकती हैं, वो ख्यालात मगलूब हो सकते हैं, वो फिक्रें हमारे ज़हन से जा सकती हैं, क्योंकि रूहानी तौर पर हमारे अंदर कुव्वत है। तो जब हम ऐसी कुव्वत हासिल नहीं कर पाएंगे फिर हम सारी जिंदगी इसी में डामाडोल रहेंगे, खुदा के साथ भी चलते रहेंगे और अपने मसाइल में भी जकड़े रहेंगे। तो खुदा के साथ चलते चलते खुदा को बड़ी मोहब्बत है ईमानदारों से, वो हमें नजात तो देगा, लेकिन अबलीस के शिकंजे से हम नहीं छूट सकते। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह रूह कुछ से, खुदा ने इसको रूह कुछ से और कुव्वत से 10वें बाब की 38वें आयत में देखेंगे, बड़ी खूबसूरती से लिखा हुआ है। लिखा है कि खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुद्स और कुदरत से किस तरह किया? क्या किया? मस्सा किया। कैसे मस्सा किया? रूह कुद्स और कुदरत के साथ। उसका आउटपुट क्या है? आउटपुट ये इसका निकला कि वो भलाई करता और उन सब को जो अबलीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। ये है रूहानी कुव्वत, जिससे ईमानदार खुद भी छूट जाता है और दूसरे को जो अबलीस के हाथों जुल्म उठा रहे होते, दुख उठा रहे होते हैं, उनको छुड़ाने की कुव्वत एक ईमानदार शख्स के अंदर मौजूद है। अगर आप ही ऐसी बच्चे हैं तो किसी ने की गीत भी गाते, आप ही जेड़े बच्चे ने किसी ने की खोला है। अगर हम किसी सोच के गुलाम हैं, किसी वीकनेस के गुलाम हैं, उससे हमारी आजादी नहीं। किसी दूसरे को खुशखबरी सुनाना बड़ा मुश्किल है। इससे पहले हमें आजाद होने की जरूरत है, और ये आजादी जिस्मानी नहीं है, ये रूहानी आजादी है। रूहानी आजादी रूहानी कुव्वत से मिलेगी। रूहानी आजादी रूहानी जोर से मिलेगी। और रूहानी जोर कैसे मिलेगा? दुआ और रोजे के साथ हम उस कुव्वत पर गालिब आ सकते हैं। इतनी बड़ी कुव्वत है दुआ और रोजे। आप 20 साल खिदमत करते रहें, अगर दुआ रोजे कुव्वत नहीं किसी खादम के अंदर, वो खिदमत करता रहेगा लेकिन खुद भी झगड़ा रहे, उसको समझ नहीं आती मैं नहीं करना, तरक्की भी कर रहा होगा लेकिन वो शख्सी तौर पर जकड़ा हुआ शख्स कैसे रिलीज हो सकता है? रूहानी कुव्वत से। यशवा ने कहा, मैं रही मेरी और मेरे खानदान की बात, हम तो किसकी इबादत करेंगे? खुदावंद। तुम बुत परस्ती करने दो। अब बनी इसराइल बुत परस्ती के गुलाम हो चुके। यशवा ने कहा, रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो जिंदा खुदा की क्या करेंगे? ये है रूहानी आजादी।
रूहानी तौर पर आजाद शख्स खुदावंद को नहीं छोड़ सकता। उसकी मजबूरी होती है अपने खुदा की इबादत करे। ये है रूहानी तौर पर आजाद शख्स। जो रूहानी तौर पर गुलाम है वो मसाइल और प्रॉब्लम्स में और खास में बंधा हुआ शख्स है। खुदा की इसको परवाह नहीं होती। होता ईमानदार, कदी दुआ कर ली, कदी इबादत कर ली, कदी, लेकिन जो रूहानी तौर पर आजाद शख्स होता है वो शख्स यीशु मसीह के साथ बंध जाता है। उसकी मजबूरी होती है। पतरस ने कहा कि जिंदगी की बातें तो तुझे छोड़कर हम कहां जाएं। इसलिए आप किसी ऐसी वीकनेस में जकड़े हुए हैं जिससे छूटना चाहते हैं और नहीं छूट रहे, और ये रूहानी कुव्वत से छुटकारा मिलेगा तो क्या करने की जरूरत है? रोजा। आप छूट सकते। कलाम कहता है मैं तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा, तुम्हारे अंदर से संगीन दिल क्या करूंगा? निकालूंगा। और ये ना कहें कि हम एक दिन में रास्तबाज बन जाए। ये हमारी जंग है, इसको जीतने के लिए रूहानी कुव्वत की जरूरत है। जो बड़ा ईमानदार उसकी भी जंग है, जो अभी बालग ईमानदार नहीं उसकी भी जंग है। ये कैसे जीतनी है? हर रोज जीतनी है। और एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, वो दुआ और रोजे के वसीला से जीती जा सकती है। खुदावंद यीशु मसीह को इब्लीस ने कहा मुझे झुककर क्या कर दे? सजदा कर दे, तो मैं ये सारी शान शौकत तुझे। कभी हमारी ख्वाहिश हमें कहती है झुककर हमें मुझे क्या कर दे? कभी हमारी अना हमें कहती है झुककर मुझे क्या कर दे? बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में, उनसे छुटकारा पाने के लिए इब्लीस को कहने की जरूरत है मेरे सामने से दूर हो जा। ये है रूहानी तौर पर आजाद शख्स। आप नहीं उस कमजोरी से छूट रहे, दुआ रोजा करें, आपको की कुव्वत आपको रिलीज कर सके। हालेलुया। इसलिए आए अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, दुआ करें। जिस कमजोरी से आप नहीं छूट पा रहे, एक कुव्वत है रूहानी तौर पर हमें छुटकारा दे सके। यीशु मसीह ने कहा अपनी सोचों को कहें, अपनी फिक्रों को कहें, मैं तेरे